Hello, welcome students. Now we are going to start the topic the PowerPoint window in MS PowerPoint 2010. You can see in this diagram, this is the PowerPoint window diagram in which you can see there are a number of tabs just like in MS Word you have seen. Here also we are having some tabs that are available here like File tab, Home tab, Insert tab, Design tab, Transition, Animation, Slideshow, etc. And the whole screen is divided into two parts. This one where you are having Slide tab and Outline tab, जहाँ पे आपको थंबनेल व्यू मिलता है आपके सारे स्लाइड का. And second one, this here you actually design your slide, and this is the ribbon in which the selected tab options will be displayed. So I think you all are familiar with all these stuff. Now we are moving forward one by one. The first thing that is part of the MS PowerPoint window is the title bar. So as the name suggests, it used to represent the title of the document that you are creating. Document here is the PowerPoint presentation. So this bar is located at the top of the PowerPoint window, जो सबसे ऊपर होता है. यहाँ पे अगर आप देखो तो you can find it somewhere here. तो this is the title bar. तो टाइटल बार सबसे ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है एंड इट कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन विच इज़ प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. तो इट विल बी डिस्प्लेड हियर. नाउ this bar is located at the top of the PowerPoint window. It displays the name of the current presentation, that is presentation 1 in this case, and the name of the application, that is Microsoft PowerPoint. Now second thing is Quick Access Toolbar. तो Quick Access Toolbar अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, which have first save button. ये देखो ऐसे फ्लॉपी का आइकन जो बन के आता है, दिस इज सेव बटन. देन यहाँ होता है अनडू बटन, फिर होता है रीडू बटन. तो ये सारे बटन्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं अक्सर. एंड इफ़ यू वांट देन यू कैन कस्टमाइज इट आल्सो. यहाँ देखो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कस्टमाइज बटन भी होता है जिसका यूज़ करके आप और ऑप्शंस को ऐड भी कर सकते हैं. तो इट इज़ कस्टमाइजेबल टूल बार which contains command that you may want to use quite often. By default, this toolbar is located on the title bar, but you can place it below the ribbon also. To do so, click on the drop down arrow at the right end of the toolbar and select the show below the ribbon option from the Customize Quick Access Toolbar menu. You can also add more commands to this toolbar. Right click on any command on the ribbon and click on Add to Quick Access Toolbar. तो Quick Access Toolbar एक कस्टमाइजेबल टूलबार होता है जहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाने वाले ऑप्शंस हैं वो वहाँ पे होते हैं. साथ ही साथ अगर हम उसको चाहें तो नॉर्मली वो टाइटल बार पे रिप्रेजेंट होता है, हम उसको रिबन के नीचे भी ला सकते हैं. और उसके लिए आपने देख लिया कि हम किस तरीके से करेंगे. क्विक एक्सेस टूलबार के सबसे लास्ट में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा, वहाँ से जाके हम उसको शो बिलो द रिबन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू ऐड एनी न्यू फीचर इन द क्विक एक्सेस टूलबार, जस्ट राइट क्लिक ऑन द ऑप्शन गिवन ऑन द रिबन एंड सेलेक्ट द ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार ऑप्शन. नाउ थर्ड थिंग इज़ रिबन. तो रिबन देखो कॉमन होता है, ये जितने भी MS ऑफिस के एप्लीकेशंस हैं सब में रिबन होता है. जैसे ही आप कोई टैब सेलेक्ट करते हो तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो रिबन पे डिस्प्ले हो जाते हैं.
तो रिबन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये सारे हमारे रिबन के ऑप्शंस, जैसे यहाँ पे देखो कि ये होम टैब दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड आएगा, स्लाइड ग्रुप आएगा, फॉन्ट ग्रुप आएगा, पैराग्राफ ग्रुप आएगा। तो इन ग्रुप्स में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो रिबन इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप एरिया ऑफ द मेन विंडो। इट डिस्प्लेज सेवरल टैब्स सच एज फाइल, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, and acrobat. Each tab contains command arranged into different groups, and we can use those commands by using the ribbon only. Now next thing is file tab. So the file tab is just similar to the office button which you have seen in MS Word 2007. So the office button of Microsoft Office 2007 has been replaced by the file tab in Office 2010. It launches the Microsoft Office Backstage view. This view allows us to create a new presentation, open an existing presentation, save, print, send, close the presentation, etc. That means all the backstage view commands are available under the file tab. Now the next thing is slides pane. तो फाइल टैब तो आपको पता हो ही गया, ये है हमारा फाइल टैब, ये जो पहला टैब है, दिस इज़ द फाइल टैब. Now the next thing is slide pane. So slide pane is the blank area in the middle of the window where you can design your slide. तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ पे आप स्लाइड को क्रिएट करते हैं, this is known as the slide pane. Here you can create your presentation slides. Now the next thing is slides tab. तो देखो दो टैब होते हैं, एक होता है स्लाइड टैब और एक होता है आउटलाइन टैब. तो ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ये स्लाइड टैब है और उसके बाद वाला जो है वो आउटलाइन टैब है, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके जो ऑप्शंस है वो यहाँ डिस्प्ले होंगे. जो हमारे स्लाइड्स होंगी, जो अगर मान लो हमने बनाया, वो इस फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले होंगी. नाउ तो अब हम इसके बारे में यहाँ देखते हैं कि स्लाइड टैब इट अलाउज अ थंबनेल और मिनिएचर वर्जन ऑफ ईच स्लाइड. If you want to see the large view of any thumbnail, just click on it. तो स्लाइड्स टैब में थंबनेल व्यू आएगा, एक आइकन व्यू आएगा आपके जितने भी स्लाइड्स हैं उनका. अब जैसे मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन में 10, 15 या 20 स्लाइड बना रखे हैं, देन all the slides thumbnail view will be represented in slides tab. If you want to access a particular slide, just click on it. Click on the thumbnail view of that slide and that slide will be open in slides pane. Now the selected slide appear in the slide pane. You can add, delete, duplicate and rearrange slides in the slides tab. If you want to add a new slide, you can do this. If you want to remove a slide, delete the slide, duplicate the slide, तो वो सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स टैब. नाउ नेक्स्ट थिंग इज आउटलाइन टैब. तो आउटलाइन टैब displays the outline of all text present in the slide tab. In the slide you can edit your text directly in this view. यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट आपके होंगे आपके स्लाइड्स के अंदर, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे और यहाँ पे आप आसानी से उसको एडिट कर सकते हैं. दैन नेक्स्ट कम्स द स्टेटस बार. तो स्टेटस बार देखो स्टूडेंट्स, ये सारा जितने भी MS वर्ड के और MS ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें ये सबसे नीचे यहाँ पे डिस्प्ले होता है हमारा स्लाइड्स टैब, सॉरी स्टेटस बार, जिसमें बताता है कि कौन से पेज पे हम काम कर रहे हैं, क्या स्टेटस है. तो ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेड हियर ओनली. सो इट शोज द स्टेटस बार इज पोजिशनड एट द बॉटम ऑफ द पावरपॉइंट विंडो.
It displays important information about the current slide like slide number, theme name, spell check, view and zoom levels. तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके स्लाइड के रिगार्डिंग, जैसे मान लो आप के 20 स्लाइड्स हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन द सेकेंड वन, तो ये लिखेगा स्लाइड 2 ऑफ 20। साथ ही साथ यहाँ पे हम थीम का नाम, स्पेल चेकिंग, व्यूज़ और जूम लेबल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा व्यू बटन है और ये हमारा जूम स्लाइडर है जिससे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और ये हमारे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू एट्सेट्रा। तो यहाँ से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ व्यू बटन्स। तो द व्यू बटन्स कैन बी यूज्ड to switch between the normal view, the slide shorter view, the reading view and the slide show view। ये जो चार मेन व्यू होते हैं इनमें हम स्विच कर सकते हैं by the use of view buttons। These are present on the right end of the status bar। Now next thing is notes pane। तो the notes pane, you can, in the notes pane you can type your personal note about the current slide and these notes do not appear on the screen when the slide are shown in the full screen mode। तो एक्चुअली ये जो नीचे का एरिया होता है हमारे स्लाइड पेन का, ये जो एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिख रहा है क्लिक टू ऐड नोट, ये वो एरिया है जहाँ पे हम हर एक स्लाइड के बारे में अपने नोट्स लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इस स्लाइड को प्रिंट करेंगे या इस स्लाइड को स्लाइड शो व्यू में डिस्प्ले करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होती हैं, ये केवल आपके पावरपॉइंट डॉक्यूमेंट में ऐसे ही रहेंगी जिसको आप देख के ये समझ सकते हो कि जो स्लाइड आपने बनाया है वो किस लिए बनाया है, उसका पर्पस क्या है। तो इट गिव्स अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट यू हैव डिज़ाइंड and is not going to be represented on the screen when you actually run the slide in slideshow view। Now the next thing is vertical and horizontal splitter bars। तो these bar are used to change the size of the pane। इसका यूज़ करके हम पेन की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। Now the tab on the ribbon contains the command as well as additional tools। Each tab consists of different groups। Each group has icons, commands for different functions। Now hovering the mouse over the command displays the functions of the command icon। जैसे जब आप माउस को होवर करेंगे फंक्शंस के ऊपर तो दैट इज़ गोइंग टू डिस्प्ले कि वो क्या फंक्शन या कौन सा कमांड एग्जीक्यूट होगा, तो दैट विल बी displayed when you hover your mouse। Now the first tab which is given here is home tab। Now home tab के बारे में आप सभी को पता है, जैसे MS Word में आपने देखा है, Excel में भी होता है, वैसे ही here also we are having home tab which is having clipboard, font etc ग्रुप ऑफ बटन्स। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी, स्लाइड ग्रुप ऑफ बटन, जिसका यूज़ करके यू कैन क्रिएट न्यू स्लाइड, यू कैन डिलीट द स्लाइड, यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड एट्सेट्रा। तो द होम टैब गिव्स यू एक्सेस टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स इंक्लूडिंग कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट एंड द न्यू स्लाइड कमांड। दीज कमांड आर फाउंड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप along with the format painter। The home tab is selected by default whenever you open PowerPoint। Some of the important group in the home tab are described below। तो देखो होम टैब वो टैब होता है जो जब आप पावरपॉइंट को पहली बार ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यही टैब हमारा सेलेक्टेड होता है और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऑप्शंस हैं जैसे कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, फॉन्ट चेंज करना, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स विच इज़ गिवन हियर इज़
we are going to discuss. The first group of button is clipboard. आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं, दिस इज द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ बटन्स. तो द clipboard group provide options that enable you to cut, copy and paste text. The format painter is also available here, present here. format painter मैंने आपको MS Word में बताया था कि फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो वही सेम वर्क यहाँ पे भी होता है. ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है. तो ये पेस्ट, कट एंड कॉपी, ये सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होते हैं. इनका भी शॉर्टकट वही है, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल X फॉर कट, कंट्रोल C फॉर कॉपी. तो ये चीज़ें एकदम सेम हैं आपके MS वर्ड जैसे ही. तो देख लीजिए, कट. द कट कमांड रिमूव्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेजेंट location and puts it into the clipboard, which can be retrieved later on. Copy. The copy command copies the selected item or text and puts it on the clipboard. And the paste option, तो देखो यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में कि दिस कमांड इज यूज टू पेस्ट द कट और कॉपीड इंफॉर्मेशन इन क्लिपबोर्ड एट लोकेशन वेयर द कर्सर इज पोजिशन्ड. नाउ यहाँ पे जब भी आप पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें आ रही हैं कि यूज़ डेस्टिनेशन थीम, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, पिक्चर एंड कीप टेक्स्ट ओनली. तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, यूज़ डेस्टिनेशन थीम की, तो दिस ऑप्शन विल डिस्प्ले द कॉपी टेक्स्ट विद ऑल फॉर्मेटिंग इफेक्ट applied to it excluding any previous change made to the font size. तो ये क्या करेगा, ये फॉन्ट साइज़ में जो भी चेंज किया था उसको छोड़ के जितने भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट हैं उनके साथ हमारे कंटेंट को पेस्ट करेगा. सेकेंड है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग. तो दिस ऑप्शन will create exact duplicate copy of the text. All the previous formatting effect are applied to it. That means जैसे formatting effect था, हमने कॉपी किया था, सेम उसी तरीके से जो हमारे टेक्स्ट हैं that are going to appear. Then after third one is picture. So this will convert the copied text into picture. All the picture effect can be applied to it or applied to the text. That means whatever you have written, whatever you have designed, that is going to be converted into image format, and afterward if you want to modify some content on it, you cannot, because you cannot directly modify it on the pictures. तो it is a very useful feature जिससे क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सेफ हो जाते हैं कि एक्सीडेंटली नो वन कैन मॉडिफाई इट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कीप टेक्स्ट ओनली. तो दिस विल पेस्ट द टेक्स्ट इन सिंपल फॉर्मेट एक्सक्लूडिंग ऑल प्रीवियस अप्लाइड फॉर्मेटिंग इफेक्ट. तो ये सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट को क्लियर कर देगा और जो आपका टेक्स्ट है वो सिंपल फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेट पेंटर. तो format painter copies the formatting style from a selected position and applies to another position. So I think you all are familiar with all these options: cut, copy, paste and format painter. Now moving forward, the next thing is slides tab. So slides group of buttons, So this slides group enable you to select a new slide and layout of the slide, reset a slide or delete a slide. The options which are available here is given here: new slide, layout, reset, selection. तो ये जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. नाउ न्यू स्लाइड, ऐड अ न्यू स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन. तो जैसे मान लो आप जिस स्लाइड पे काम कर रहे हो, जो स्लाइड करेंटली सिलेक्टेड है उसके जस्ट आगे एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा. तो whenever you click on the new slide button, a new slide will be inserted into your presentation. The shortcut of doing is control plus M for monkey. तो आप कंट्रोल M प्रेस करेंगे तो आपका एक नया स्लाइड भी ऐड हो जाएगा. तो ये इसका शॉर्टकट होता है.
So new slide adds a new slide to the presentation. Second, the layout command is helpful to change the layout of the selected slide, which we are going to talk about in detail in later part of this lesson. Now, the reset command is used to reset the position, size and setting of the slide to default values. So these are the three most important commands that are given in the slides group. Now next thing is font. So the font group has options that help you to change the font face, style, size, color and character spacing. तो पहली चीज़ जो यहाँ आती है वो है कमांड टू फॉर्मेट टेक्स्ट आर फाउंड इन द फॉन्ट ग्रुप। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन फॉन्ट ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट फेस। तो फॉन्ट फेस चेंज करने का ऑप्शन आपको सबको पता है कि यहाँ पे सबसे यहाँ पे दिया रहता है। इसमें आप एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, मोनोटाइप, कर्सिवा या कोई भी आपको जो फॉन्ट फेस आपको चाहिए यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। देन आफ्टर क्लियर फॉर्मेटिंग बटन होता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग बटन ये देखो इस तरीके से होता है। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं इस क्लियर फॉर्मेटिंग बटन पे तो इट क्लियर्स ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सेलेक्शन, ओनली द प्लेन टेक्स्ट रिमेन। जैसे अगर हमने कलर चेंज किया था, साइज इंक्रीज डिक्रीज किया था, हमने कोई भी फॉर्मेटिंग की थी तो वो सारी फॉर्मेटिंग इज़ गोइंग टू बी रिमूव्ड एंड the text will be represented only. Now next thing is B, I and U option. So I think all of you are familiar with it. B for bold, I for italic and U for underline. The options are used to make the text bold, italic and underline. The shortcut of doing is control B, control I and control U. यहाँ पे यू कैन आल्सो चेंज द अंडरलाइन स्टाइल। जो आपने एम एस वर्ड में देखा था कि हम सॉलिड अंडरलाइन भी रख सकते हैं, डैश्ड अंडरलाइन भी रख सकते हैं, डॉटेड अंडरलाइन भी रख सकते हैं एंड जो उसकी सॉलिडनेस है वो भी हम मैनेज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस को भी मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू अगेन इट इज़ अवेलेबल इन एम एस वर्ड 2। तो इसका हम यूज़ करते हैं कि जैसे मान लो हमने लिखा ए बी सी, तो स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो इस एक लाइन से वो कट जाएगा। तो स्ट्राइक थ्रू ड्रॉज अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। नाउ टेक्स्ट शैडो कमांड एड्स अ शैडो बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट। देन कैरेक्टर स्पेसिंग एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स। जैसे अगर हम लिखें ए बी सी तो अगर कैरेक्टर स्पेसिंग हम मैनेज करेंगे तो ऐसे स्पेस आ जाएगा ए बी और सी, मतलब हर एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस को मैनेज करने के लिए वी यूज़ कैरेक्टर स्पेसिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज चेंज केस। तो चेंज केस ऑप्शन चेंजेस द टेक्स्ट टू सेंटेंस, लोअर केस, अपर केस एटसेट्रा। तो ये सब आपको पता होगा। इसका भी शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F3। तो ये भी आप रखिएगा याद कि शिफ्ट प्लस F3 अगर हम प्रेस करेंगे तो उस केस में जो केस है वो चेंज हो जाएगा। नाउ फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर चेंजेस द फॉन्ट कलर। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे फॉन्ट ग्रुप में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन MS वर्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप इज ऑल्सो सिमिलर टू MS वर्ड which have bullets, numbering, indentation, text direction, alignment and left alignment, right alignment, center alignment, justified। तो ये सब ऑप्शंस आपको पता है, आपने MS वर्ड में देखा था, तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। तो ये जैसे देखो ये आपका बुलेटेड लिस्ट है, अगला वाला नंबर्ड लिस्ट है, ये इंडेंटेशन इंक्रीज, इंडेंटेशन डिक्रीज, ये आपकी लाइन स्पेसिंग मैनेज करता है, यहाँ पे लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और ये लास्ट वाला जो है ये जस्टिफाइड है। और यहाँ से हम कॉलम्स मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही टेक्स्ट डायरेक्शन है, अलाइन टेक्स्ट है, तो आप इन सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
The next thing is guidelines to make an effective presentation. So student, we will cover this topic in next video. So I hope you all understand it. In case of any doubt, please feel free to contact. Thank you.